वडहंस महला पंजवा। घर दूजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद। मेरे अंतर लोचा मिलन की प्यारे। हाँ क्यों पाई गुर पूरे। जे सौ खेल खिलाइए बालक। रह न सकै बिन खीरे। मेरे अंतर भुख न उतरै अमाली। जे सौ भोजन मैं नीरे। मेरा मन तन प्रेम पिरम का। बिन दर्शन क्यों मन धीरे। सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई। मैं मेले हो मित्र सुखदाता। ओह जी की मेरी सब बेदन जानै। नित सुनावै हर किया बातां। हाँ एक खिन तिस बिन रह ना सका। ज्यों चातृक जल को बिल लाता। हाँ क्या गुण तेरे सार संभाली। मैं निर्गुण को रख लेता। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन हजूरी दे अंदर सुभाएमान सतसंगी जनो वडभागे हो। जो सतगुरां दी रहमत बख्शिश हासिल कर रहे जे। चल रही लड़ीवार धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन विचार। आप जी ने जो अमृत बचन सरवण कीता है। इस पावन बचन दे विच धन गुरु अर्जुन साहिब पातशाह महाराज जी एक जीव इस्त्री दे अंदर प्रभु पति नूं मिलन दी जिहड़ी तांग है ओहदा जिक्र पे करदे ने। ते उदाहरणां दे के ये गल समझाउंदे ने कि जिवें एक पपीहा सुआंती बूंद तो बिना नहीं रह सकदा। जिवें एक बच्चा दुध तो बिना नहीं रह सकदा। कहन लगे इसे तरीके दे नाल जीव इस्त्री जिहड़ी परमात्मा दे चरनां दे नाल जुड़ी हुई है वो परमात्मा दे दीदारां तो बिना नहीं रह सकती। सो ये शब्द जिहड़ा वो लंबेरा है। 5 इस पावन शब्द दे पदे ने ते 4 एक पदे दे विच पंक्तियां ने। समा थोड़ा होने करके आपां जिहड़ा वो 2 पदियां दा पाठ सरवण कीता है। बाकी जिवें भी सतगुरु जी बख्शिश करनगे समय दे हिसाब दे नाल आपां इस पावन शब्द दी विचार करांगे। सो सतगुरु आरंभ दे विच बख्शिश करदे ने वडहंस महला पंजवा घर दूजा। ये पावन बचन धन गुरु अर्जुन साहिब महाराज जी की अमृत रसना चो उचारण किया होया। वडहंस राग दे अंदर धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंग 564 के उपर सुभाएमान है। इस पावन शब्द नूं सतगुरां ने हदायत की है कि दूसरे घर सुर ताल दे विच गाउणा है। अगे मूल मंत्र बख्शिश करते ने एक ओंकार।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਨਿਰੰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਲੋਚਾ ਮਿਲਨ ਕੀ ਪਿਆਰੇ, ਹਉ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਚਾ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂਘ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਲੋਚਾ ਮਿਲਨ ਕੀ ਪਿਆਰੇ, ਹਉ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਕਿਉਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਵੇਂ, ਗੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਇੱਛਾ ਬੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਓਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਲੋਚਾ ਮਿਲਨ ਕੀ ਪਿਆਰੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਉ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਸੌ ਖੇਲ ਖਿਲਾਈਏ ਬਾਲਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਆਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, 100 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਖਿਡਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਬਿਨ ਖੀਰੇ। ਖੀਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁੱਧ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿਡਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਖੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਰੰਭ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੋ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਓਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੀਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਝਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹੈ,
ਤੇ याद रखियो वो खिच उन्होंने सागर तक एक दिन मिला देंदी है। एक बार ना भाई वीर सिंह हुणां ने सवाल कीता सी पानी की बूंद नूं, कहन लगे कि तू पहाड़ां तो चली है, ना तू चट्टान देखदी है, ना पत्थर देखदी है, ना जंगल बेला देखदी है, हर वेले वो भजदी रहिंदी, तैनूं टका नहीं आउंदा। उन्हें बूंद ने बड़ी सोहनी गल कही, कहन लगे जिहदे दिल दे विच प्यारे नूं मिलन दी तांग होवे उहनूं कदी आराम नहीं मिलदा हुंदा। वो भाई साहब भाई वीर सिंह हुणां दी सतर है, कहन लगे जिन्ना तांग सीने दे विच खाधी कर आराम नहीं बहिंदे। कहंदे वो आराम करके नहीं बहिंदे, जिन्हां दे दिल दे विच खिच है ना वो कदी भी आलस पाने वाले पासे नहीं जाते। एक उदाहरण दूसरी उदाहरण दवां, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ जन्म ਹੁੰਦਾ है जी, चलो इत्थे बालक ते खीर ਦਾ शब्द आया है। एक बच्चा दुध ਦੇ आसरे है ਤੇ ਅੱਜ तक ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦਾ जन्म ਹੁੰਦਾ है, कुछ घड़ियां ਦਾ कुछ समय ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। याद रखियो जिन्हों परमात्मा नूं मिलन की तांग पैदा हो गई वो इधर उधर मत्था नहीं मारदा, फिर वो रब रब करदा, एक दिन परमात्मा तक पहुँच जाता है। ये अजे तक साडे अंदर इच्छा नहीं जी, भावें परमात्मा है तो भावें वो कोई भी इहो जिहा दुनियावी पक्ष है, कोई भी इहो जी साडे वास्ते मंजिल है जिथों तक असीं पहुँचना चाहुंदे हैं। सो मैं गल नेड़े रखा, इत्थे सतगुरु कहंदे मेरे अंदर तांग पैदा हुई है तो सब तो पहला तुसी एक गम करो। ये मनोविग्यान कहंदा जिथों तक तुसी पहुँचना है उहदा पहला नक्शा बनाओ, तुसी चाहुंदे की जे। साडी समस्या पता की, खास करके मैं जो देखदा साडे पंजाब दे बच्चों की, जदों असीं 12 करदे तक सानूं इहो नहीं पता हुंदा असीं गां करना भी की है। हर कोई बच्चा दो राह लैके चलदा, आह कर लांगे नहीं तो वेख लांगे, वो कहंदे ना भी जे लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का। साडा सुभाਅ इदां दा, जदों तुसीं दो बेड़ियां 'च पैर रखोगे कदी कामयाब नहीं होगे। मनोविग्यान ये गल कहंदा है, गुरमुखो ये गल याद रखियो, साडी जिंदगी 'च काम आउण वालियां ने कि जो तुसीं चाहुंदे जे, जिस मंजिल तक पहुँचना चाहुंदे जे, जिथे एंड करना चाहुंदे जे कि आह चीज़ मैनूं चाहीदी है, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ एक फ्रेम, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ एक नक्शा तैयार करो। ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए मैं पहुँचना कित्थे है। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ मन 'ਚ ਉਹ चीज़ की तांग पैदा हो गई, नक्शा पैदा हो गया भी ਇੱਥੇ पहुँचना है, फिर बंदे का ਜਿਹੜਾ माइंड है वो फिर वर्क करना शुरू करता है। सानू तो पता ही नहीं लगता भी असीं करना भी की है जिंदगी दे विच। कदी भी साडे तुसीं बच्चे पढ़ते देखोगे ना, वो पढ़ाई करते होणगे तो टैसट 2-2 3-3 के पासे लत्तां फसाई होणगियां, आ भी तैयारी कर ली है, इहदा भी पढ़ लेने, इधर भी पता क्यों सानू भरोसा ही नहीं है कि मैं इधर पहुँचांगा। साडे मन दे विच ये इन्ना क अपने उत्ते विश्वास नहीं हैगा। इस करके मैं बेनती करा, जदों भी मंजिल मिथनी है, एक मंजिल मिथो, मंजिल मिथ के जदों तुसीं सफ़र आरंभ करदे जे ते याद रखियो एक कुदरत का नियम है, मनुख अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचदा है। सतगुरु कह रहे ने, कह लगे मेरे अंतर लोचा मिलन की प्यारे, हे प्यारे मेरे अंदर बड़ी तांग है कि मैं उस गुरु नूं मिला। इत्थे गुरु की पहला गल चलनी है, मैं उस गुरु नूं मिला, मेरे अंदर तांग लगी हुई है, पर यह नहीं समझ आउंदी कि हाँ क्यों पाई गुर पूरे। कहंदे मैनूं समझ नहीं आउंदी उस गुर पूरे नूं किवें प्राप्त करा। मेरे हालात कहंदे किदां दे ने, कहंदे जे 100 खेल खिलाइए बालक, कहंदे बच्चे नूं भुख लगी होवे, तुसीं जिन्नियां मर्जी खेडां 'च इधर उधर उहदा ध्यान करो, रह ना सकै बिन खीरे। वो बच्चा खीर तो बिना दुध तो बिना नहीं रह सकता। जिहदे अंदर परमात्मा नूं मिलन दी तांग पैदा हो गई, याद रखियो उन्हां नूं फिर रात नींद नहीं आउंदी हुंदी। जिन्ना असीं कहंदे ना अक्सर, एक जदों बंदगी की गल चलदी है, बंदा कहंदा जी रात नींद बड़ी आउंदी, अमृत वेले उठिया नहीं जाता। तो एक गल याद रखियो, नींद उन्होंने ही आउंदी है जिन्हों परमात्मा दे नाल प्रेम कोई नहीं। जिन्हां नूं प्रेम होवे उन्हां नूं कदी अखां दे विच नींद नहीं पैंदी। जिन्हां ने कुछ प्राप्त करना है ना, जिवें मैं हुणे उदाहरण दित्ती, वो कदी टेक के नहीं बैठते। सतगुरु कहन लगे बिन रह ना सकै बिन खीरे, बच्चा खीर तो बिना नहीं रह सकता। अगे कह लगे मेरे अंतर भुख ना उतरै अमाली, जे 100 भोजन मैं नीरे। याद रखियो गुरबाणी दे विच
नीरे शब्द पानी दे लई भी आया। नीर शब्द, नीर दा अर्थ पानी भी कीता जांदा है, ते नीरे दा अर्थ एक परोसना भी हुंदा है, किसी दे अगे पेश करना। सतगुरु कहन लगे अमाली दा अर्थ है सहेली। कहन लगे हे मेरी सखी सहेली, ये जीव इस्त्री रूप च शब्द है। कहन लगे हे मेरी सखी सहेली, जे मेरे अगे जे 100 भोजन मैं नीरे, ये अनवे अर्थ करांगे, पहला अखीरले शब्दां नूं आपां फड़ांगे। कहन लगे जे 100 भोजन मैं नीरे, हे मेरी सखी सहेली, जे मेरे अगे 100 तरह के भोजन भी क्यों ना परोस दिते जान, दुनियावी भोजनां नूं खा के भी मेरे अंतर भुख ना उतरे प्यारे। मेरे अंदर दी परमात्मा नूं मिलन दी जिहड़ी भुख है वो दुनियावी पदार्थ भी पूरी नहीं कर सकते। भुख एक तरह की नहीं हुंदी। एक गुरु नानक साहब जी का बचन है, ये चलो है तो वो वैद नूं उपदेश दिता, उत्थे भुख का जिक्र आवेगा। वैसे ये दुख दे विच गुणी है। गुरु नानक साहब का एक पावन बचन है, मलार रखदा, मैं पढ़ देना 2 पंक्तियां ओहदियां। कहण लगे दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, ये 4 दुख गिनाए ने। दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सकत वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन धाए वैद ना भोले दारू लाए। सब तो पहला दुख है विछोड़े का, दूसरा दुख है भुख का। तो भुख के अर्थ कदी प्रशादा नहीं करना। प्रशादे की जिन्हों भुख होवे याद रखियो, वो 2 रोटियां खा के ते अपने 4 रोटियां खा के अपनी भुख नूं तृप्त कर लैंदा है। पर बड़ियां इहो जिहियां भुखां ने जिहड़ी बंदे दी मरदे दम तक भी पूर्ति नहीं हुंदी। अखां नूं पराया रूप वेखण दी भुख है, कन्नां नूं निंदिया चुगली सुणन दी भुख है, जुबान नूं पदार्थां दी भुख है, जीव नूं हौमे दी भुख है। ये भुखां ने ये कदी पूरीआं नहीं हुंदियां। किसी नूं तुसीं तृप्त करना होवे, बंदा रज्जिया होवे, उहनूं आखो भी 2 प्रशादे होर छक ला, कहिंदा मैं रज गया। पर याद रखियो जिहदे अंदर इन्हां विकारां दीयां भुखां लग जाण, वो सारी उम्र नहीं जे रुकदा, वो नहीं कदी भी रजदा। सतगुरु इत्थे समझा रहे ने, ये तां मैं उदाहरण लई भी इत्थे भुख दा अर्थ दुनियावी भोजन नहीं करना। इत्थे पहला जिहड़ा है वो दुनियावी भोजन की गल है, तो दूजे नंबर ते असीं परमात्मा नूं मिलन दी भुख की गल करांगे। कहणगे जे 100 भोजन मैं नीरे, मेरे अगे 100 तरह के भोजन भी क्यों ना परोस दिते जान। 100 का अर्थ करांगे बहुवचन, कई तरह के भोजन भी क्यों ना मेरे अगे रख दिते जान, पर जिहड़ी तांग मेरे अंदर परमात्मा नूं मिलन दे लई पैदा हुई है, जिहड़ी भुख परमात्मा नूं मिलन दे लई पैदा हुई है, वो इन्हां भोजनां दे नाल नहीं कदी भी लथ सकदी। वो उहदे दीदार करके ही लथेगी। कह लगे मेरा मन तन प्रेम प्रम का, प्रेम प्रम, प्रम का अर्थ है पति। कह लगे मेरे मन अते तन, ये सिहारी है जी दोवें नन्नियां नूं। तो मैं अक्सर अर्ज करता हूँ जो अखीरले शब्द नूं सिहारी आ जाए, उहदा अर्थ विच करके करना है। इहदा अर्थ करांगे मन दे विच, तन दे विच। तन का अर्थ हुण परमात्मा की भुख, तन नूं किवें इंद्रियां नूं। एक बाबा साहब जी का श्लोक पढ़ते ना, ए दोए नैना मत छूहो फिर देखण की आस। वो उत्थे आपां तन नूं अर्थ करा, अखां नूं भुख है, अखां दी चाहत है कि किते मैनूं परमात्मा दे ओ दीदार हो जाण। कहणगे मेरे मन तन प्रेम प्रम का, कहंदे मेरे मन दे विच, मेरे तन दे विच, भाव मन दी इच्छा अते मेरे ज्ञान इंद्रियां दी ये इच्छा है कि मेरे अंदर परमात्मा दा प्रेम बनिया रहे। मैं उस परमात्मा दा प्रेम हर वेले हिरदे च टिका सकां। बिन दर्शन क्यों मन धीरे, कहणगे मेरे हिरदे च हर वेले परमात्मा दा प्रेम आण के वसदा है। मैनूं दसो उहदा प्रेम ते मेरे हिरदे दे विच है, जिन्ना चिर उहदा दीदार नहीं हुंदा ते मेरे अंदर नूं धीरज किवें आवे। जिन्ना चिर मैं पिछले समय च बेनती कीती सी, दर्शन जिहड़े ने वो तकरीबन ये 2-3 तरह के नाल हुंदे ने। मैं उहदे नाल फिर रिपीट कर देना। एक दर्शन ने अखां नाल, एक दर्शन ने सुनन दे नाल, कन्नां दे नाल, एक है सुरत दे नाल। असी किसी मनुख नूं देखिया, अखां दे नाल वेखिया ते उहदे दीदार हो गए। किसी चीज़ बारे अखां दे जिहड़ा कन्नां दे नाल सुनिया तो उहदे बारे असी अपने हिसाब दे नाल उहदी फोटो जिहड़ी बना के बह के उहदे कन्नां दे नाल दर्शन करते हैं कि आह चीज़ इदां दी हो सकती है। जां तीसरी गल है सुरत दी। इत्थे सतगुरु कहंदे कन्नां दे विच उहदे जिहड़े ने परमात्मा दे बोल ते भावें पैंदे ने, मेरे हिरदे च भावें उहदे परमात्मा प्रभु दे लई प्रेम जरूर है, पर मैनू एक गल दसो, जिन्ना चिर मैनू दर्शन नहीं उहदे हुंदे, इन्हां नेत्रां दे नाल परमात्मा नूं तक नहीं लैंदा, उन्ना चिर मेरे सीने च ठंड नहीं पैंदी। किवें मेरा अंदर टिकेगा? कह लगे बिन दर्शन क्यों मन धीरे, क्यों दा अर्थ किवें मेरा अंदर किवें जिहड़ा धीरज फड़ेगा। अगे सतगुरु दूसरे बंद च बख्शिश करते हैं, कह लगे सुन सज्जन
मेरे प्रीतम भाई। ये तिन्ने शब्द वरतांगे। कहन लगे हे मेरे सज्जन, हे मेरे भाई का अर्थ है भरा, हे मेरे वीर। प्रीतम का अर्थ हुंदा प्यारा, हे मेरे प्यारे। कहन लगे हे मेरे सज्जन, मेरे प्रीतम, मेरे भरा, एक गल सुन मेरी। कि कहन लगे मैं मेले हो, ਇਹਦਾ पाठ बड़े ध्यान ਨਾਲ करना। मम्मे नूं ਲਾਂ, लल्ले नूं सियारी ते हाहे नूं औंकड़। ਇਹਦਾ अर्थ करांगे मैनू मिला दिओ। मैं मेले हो, ये तिन्ने जिहड़े उचारण करांगे मात्रा दा, लां भी होवेगी, सियारी भी ते औंकड़ भी। मैं मेले हो, मैनू मिला दिओ। किनू? मित्र सुखदाता, गुरु मित्र जिहड़ा सुखां दा खजाना है ना। मेरे सज्जन, मेरे वीर, मेरे भरा, किरपा करके मैनू परमात्मा दे नाल मिला दिओ। मेरे ते किरपा करो, मैनू किसी तरीके दे नाल परमात्मा दे नाल मिला दिओ। क्यों? क्यों गुरु नाल मिला दिओ। क्यों? क्योंकि ओह जी की मेरी सब बेदन जानै। बेदन का अर्थ है जी पीड़ा। कहंदे मेरे अंदर दी जिहड़ी तांग है ना, जिहड़ी पीड़ा है, वो परमात्मा जिहड़ी वो सारी गुरु जानदा पिया है। ਉਹਦੇ तो कुछ लुकिया नहीं होया। तो मैं अक्सर कहना ना गुरमुखो याद रखियो, असी लोगों तो जो मर्जी लुका लईए पर गुरु ते परमात्मा तो असी कदी कुछ नहीं लुका सकते। एक बचन पढ़ते सतगुरां दी बाणी दा कि घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। वो जाननहार है, वो अंतरजामी है, साडे अंदर दी वेदना सारी जानदा है। याद रखियो जे दिलों उन्होंने याद करदे जे वो तां भी जानदा है, जे तुसी विखावा करदे जे वो तां भी जानदा। वो परमात्मा तुहाडे अंदर दी वेदना नूं जानदा पिया है। कहन लगे ओह जी की मेरी सब वेदन जाने, वो मेरे अंदर दे हालात सारिਆਂ नूं जानदा पिया है। नित सुनावै हर कीआं बातां, ते जदों मैं उहदे चरनां दे नाल जुड़दा है ना, वो मैनू बाणी रूप दे विच रोज़ हर वेले परमात्मा दे घर दीआं गल्लां पिया सुणाउंदा है। गुरु परमात्मा दे घर दीआं मैनू बातां पिया दसदा है। कहन लगे हाँ एक खिन तिस बिन रह ना सकां। कहिंदे मैं परमात्मा तो एक खिन जिन्ना समा भी रह नहीं सकदा। मेरा दिल करदा है मैं उहदे घर दीआं गल्लां सुनी जावां। मेरा चित्त करदा है मैं उहदा नाम जपी जावां, उहदी हर वेले बाणी पढ़ी जावां। हाँ एक घिन तिस बिन रह ना सकां। किवें? ज्यों चातरक जल कौ बिल लाता। बिल लाता का अर्थ है व्याकुल होना, तरसना। कहन लगे जिवें ये चातरिक का अर्थ है पपीहा, जिवें एक पपीहा सुवंती बूंद दे लई तड़फदा है। कहंदे मैं इसे तरीके दे नाल परमात्मा दे दीदारां तो बिना तरसदा। मैनू समझ नहीं आउंदी कि वह परमात्मा मैनू किवें दीदार देवेगा, मैं किवें उहदा दर्शन करां। कहन लगे हाँ एक खिन तिस बिन रह ना सकां। तो मैं इत्थे एक बेनती करा, जदों अंदर परमात्मा दे लई प्रेम पै, ये वैसे प्रेम वालियां दी खेड है जी। आम मनुख दा एक सुभाਅ है। तुसीं कदी मनुख दी खुराक तक्को, एक सधारण मनुख है वो सिंपल सादा प्रशादा छक के अपना गुजारा कर लैंदा। एक पहलवान है वह कला प्रशादे दे नाल नहीं सरदा। जिन्हें कुश्ती करनी है, जिन्हें खेडना है कुछ, उन्होंने वक्री खुराक लैनी पैंदी है, नाल घ्यो खावेगा, होर कई तरह की डाइट लवेगा, है तो खुराक ही। एक वो मनुख है जिहड़ा जीवन दे विच परमात्मा नूं कोई बहुती जी नहीं, बस मत्था टेकिया, प्रशाद ले, घर चल गया, दिल कीता नितनेम कर लिया, बाणी पढ़ ली तो गल मुक गई। पर जिन्हां दे अंदर परमात्मा दे नाम की भुख लग जाती है, उन्हां दा हर वेले जिहड़ा वो अंदर परमात्मा गुरु गुरु का सिमरन चलता रहिंदा है। तो गुरु नानक साहब पातशाह महाराज जी ने एक थां ते ये गल भी कही, कह लगे जिहड़ा गुरमुख बन जाता है ना, जिहड़ा गुरु के चरणों च जुड़ जाता, उहदी ते अवस्था इन्नी क ज़्यादा बन जाती है कि वो मनुख परमात्मा का नाम एक जुबान छड्डो, जिन्ने भी उहदे तन दे उत्ते रोम ने ना, वो सारे रोमां दे नाल उहदा गुरु गुरु जिहड़ा चलदा रहिंदा है। वो पावन बचन असीं सिद्ध गोष्ठ दा जी ये पंक्ति है कि गुरमुख रोम रोम हर ते आवे। वो हर वेले रोम रोम करके परमात्मा का नाम जपदा है। पर कमाल की गल है, ये दो तरह की भुख है। एक थां ते बाणी ने कहा कि हे प्रभु जदों तेरा नाम जपिया तो मेरियां जिहड़ियां भुखां सारियां खत्म हो गईयां। एक थां ते बाणी कहती है मैं ज्यों तेरा नाम जपदा हाँ त्यों त्यों मेरे अंदर भुख ते प्यास वधदी जाती। असीं बचन पढ़ते हैं, कह लगे मेरे जल की माधो जल की प्यास ना जाए। हे प्रभु जी, वो अंदर जिहड़े नाम जल की तांग है ना, वो कदी खत्म नहीं हुंदी।
फर्क इन्ना क गुरमुखो, जिहड़ा मनुख दुनियावी पदार्थां दे नाल जुड़िया है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੱਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਰਤੀ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਿਨ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। तो एक बार गुरु नानक साहिब पातशाह महाराज जी ने ना सानू ये चीज़ां तन ते हंडा के विखाइयां ने। एक बार कवि संतोख सिंह उन्होंने ये साखी लिखी है, कहते गुरु नानक साहिब पातशाह महाराज जी ना ये मंजे ते लेटे ने, ते कई वारी उन्हां दे सीने दे विचों इदां दी रसना तो आवाज़ आउंदी है जिवें कोई बड़ा विरलाप करदा होवे, जिवें कोई रोंदा होवे। ते माता जी ने पुछया सी, कहन लगे कि माता तृप्ता जी ने कि कह लगे नानक गल की है, की गल तुसी रोंदे क्यों जे? उन्हें एक गल कही, कह लगे माँ जिवें एक पपीहा सवांती बूंद तो नहीं ना रह सकता, इस तरीके दे नाल मैं प्रभु प्यारे तो बिना नहीं रह सकता। जदों वो परमात्मा भुलदा है तो उदों मेरे अंदर दा जिहड़ा वो विरलाप जिहड़ा वो बाहर हौकियां दे रूप दे विच बाहर निकलदा है। ये अवस्था आउंदी है जी गुरमुख किसे किसे ते बाणी कहंदी है भी कोटन मैं नानक को नारायण जिह जीत। किसे विरले विरले ते गुरमुख ते इहो जी अवस्था आउंदी है जिहड़ा परमात्मा दे नाम दे नाल जुड़ जांदा है। फिर एक जिवें अमली नूं एक नशेड़ी नूं किते नशा ना मिले, उहदा मंदा हाल हो जांदा है ना। जिहड़ा नाम जपदा है बस वो भी इदां तड़फदा है जिवें एक मच्छी पानी तो बिना तड़फदी है, नाम जपण वाला परमात्मा तो बिना भी इदां ही तड़फदा है। मैं हुणे उदाहरण दित्ती सी ना विछोड़े, विछोड़े का दुख बड़ा भैड़ा है। ये जिन्हां नूं लग जांदा है उन्हां दा जीवन रुल जांदा है, पर जिन्हों परमात्मा का विछोड़ा लग जांदा है याद रखियो उहदा जीवन जिहड़ा वो कामयाब हो जांदा। ये विछोड़े विछोड़े का फर्क है। गल नेड़े रखा समा हो चलिया, कह लगे हाँ एक खिन तिस बिन रह ना सकां। कह लगे हे मेरी सहेली मैं उस परमात्मा तो बिना एक खिन जिन्ना समा भी नहीं रह सकती। किवें? ज्यों चातरिक कहो ज्यों चातरिक जल कहो बिल लाता। कहते जिवें एक पपीहा सुआंती बूंद दे लई तड़फदा है, इदां मैं हर वेले जिहड़ा उस परमात्मा तो बिना वो तड़फदी हाँ। अगे कह लगे हाँ क्या गुण तेरे सार संभाली। सार दा अर्थ बाणी दे विच याद रखियो लोहा भी आया है, सार दा अर्थ बाणी दे विच श्रेष्ठ भी आया है, सार दा अर्थ बाणी दे विच संभालना भी आया है। हुण इत्थे संभालना अर्थ नहीं करांगे कि संभाली शब्द भी नाल आ गए, दोवें इकट्ठे हो गए। इहदा भाव अखरी अर्थ संभाली करके ते भाव अर्थ चेता करांगे। कहन लगे हाँ क्या गुण तेरे सार संभाली। हे प्रभु मैं चेते कर करके किन्ने क गुण तेरे सामभ के रखां। भाव मैं ते निर्गुण हाँ, मेरे को इन्ना नाम नहीं जपिया जाता। तू पर उपकार ही इन्ने क कीते ने, मैं केड़ा केड़ा तेरा पर उपकार गिनावां। हाँ क्या गुण तेरे सार संभाली, तेरे केड़े केड़े गुण चेते करके मैं हिरदे दे विच टिकावां। मैं निर्गुण कहो रख लेता। कहन लगे पर तू फिर भी इन्ना क ज़्यादा बख्शिंद है कि मैं निर्गुण का अर्थ करना इत्थे गुणहीन। कह लगे तू मैनू गुणहीन नूं फिर भी अपने चरनां दे नाल जोड़ के रखिया है, मैनू फिर भी तू बख्श देना है, फिर भी मेरी तू रखिया करदा है। भावें मैं तेरा कोई नाम नहीं जपदी, भावें मैं तेरा कोई नाम जिहड़ा गुण वो चेते नहीं करदी, पर तू फिर भी मेरे उत्ते किरपा करदा है। सो ये सी पहले दो पदियां दी विचार। समय की समाप्ति है, शब्द लंबेरा है, बाकी दी विचार कल नूं। इन्नियां बेनतियां प्रवान होइयां भुलां गलतियां दी खिमा। आओ पावन पंक्तियां दा जाप सरवण करके समाप्ति करिए। हाँ एक खिन तिस बिन रह ना सकां, ज्यों चातरिक जल कौ बिल लाता। हाँ क्या गुण तेरे सार संभाली, मैं निर्गुण कौ रख लेता। वाहिगुरु जी का खालसा